गुड मॉर्निंग क्लास 11। प्रीवियस क्लास में हमने किंगडम फंगाई स्टडी किया था. सो ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ स्पोर्स फंगाई डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट टू किंगडम प्लांटी. Kingdom plantae. So kingdom plantae includes all the plants. So what are their important features? It consists multicellular, eukaryotic and photosynthetic or autotrophic organism. Important feature of the kingdom plantae is they are all multicellular, eukaryotic and autotrophic. But biology is the science of exception. Kingdom plantae में भी कुछ plants हमको ऐसे मिलेंगे जो कि parasites होंगे. So parasitic plant like dodder. It is a amarvale, है ना? Dodder plant that is amarvale. ये कैसा plant है? Parasitic. And some are insectivorous plant. So insectivorous plants that is they are photosynthetic or autotrophic. लेकिन कई बार जब वो खुद नहीं बना पाते हैं और उनको नाइट्रोजन डेफिशिएंट होता है तो नाइट्रोजन लेने के लिए वो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं. सो फॉर एग्जांपल पिचर प्लांट, ब्लैडर बर्ड एटसेट्रा, sundew, drosera, है ना? These are the some insectivorous plants. In particularly kingdom plantae, the important features is occur which is called as alternation of generation. Alternation of generation. So what is alternation of generation? फर्दर क्लासिफिकेशन अभी हम लोग थर्ड लेसन में स्टडी करेंगे प्लांट किंगडम में, जिसमें फर्दर क्लासिफिकेशन में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म देखेंगे. उन सभी में ये स्पेसिफिक फिनोमिना मिलेगा ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दैट इज रोटेशन ऑफ टू जनरेशन. सो व्हाट आर टू जनरेशंस? नंबर वन इज गैमेटोफाइट एंड सेकंड वन इज स्पोरोफाइट. So as the word denote, gameto that is gamete bearing phase, and what is sporo? Spore bearing phase. So gametophyte means gamete bearing phase. जहाँ पर gametes formed होंगे वो gamete bearing phase होगा. So उसका ploidy क्या होगा? Haploid. Haploid that is only single set of chromosome. So this ploidy is a haploid. Okay. And sporophyte that is spore bearing phase. So always spore is diploid. Okay, sporophyte that is spore bearing phase, it is always diploid phase. So alternation of gametophyte and sporophyte phase takes place. This process is called as alternation of generation. So how can you define alternation of generation? It is the rotation of two different phases, gametophyte gamete bearing phase which is haploid and alter with the diploid phase that is spore bearing phase is sporophyte. So this is the short introduction of kingdom plantae, जिसको further classify करेंगे हम chapter 3 में kingdom plantae के लिए. So according to the 5 kingdom classification, next kingdom is kingdom Animalia. So Animalia includes all the animals. Next kingdom is a kingdom Animalia which includes all the animals. So what are the important features of Animalia is they are also multicellular, eukaryotic and their mode of nutrition is heterotrophic. So all the animals are heterotrophic. They directly or indirectly depends on the other organism. Okay. उसको फर्दर हम क्लासिफाई करेंगे हमारे चैप्टर 4 में किंगडम एनिमेलिया में. ठीक है. नेक्स्ट वायरसेस एंड विरोइड्स. नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनिज्म है वायरसेस एंड विरोइड्स.
सो किसी भी किंगडम में एज पर द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, Monera includes only bacteria and blue-green algae. Protista include diatoms, golden algae, euglenites, slime molds, and protozoans. Kingdom fungi, all the fungus. Kingdom plantae, all the plants. Kingdom animalia, all the animals. So viruses and viroids के लिए कहीं अलग से जगह नहीं है, इसलिए हम उसको सेपरेट स्टडी करते हैं. So what are viruses? So first of all, 1892 scientist Ivanovsky discovered smaller organisms as compared to bacteria. बैक्टीरिया से भी स्मॉलर एक ऑर्गेनिज्म है जिसको 1892 में इवानोव्स्की ने ऑब्जर्व किया था, स्टडी किया था, और इसको क्या नाम दिया? वायरसेस. एक्चुअली वायरसेस इज द लिंक बिटवीन द नॉन लिविंग एंड लिविंग फैक्टर्स. सो इसका जो नॉन लिविंग पार्ट है वो क्या है? यदि वो होस्ट के बाहर रहता है तो किसके फॉर्म में रहता है? एक क्रिस्टल के फॉर्म में. जैसे सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल, ऐसा क्रिस्टल आपने भी देखा होगा. तो उस क्रिस्टल्स की तरह से वायरसेस दिखाई देता है, इसलिए हम उसकी प्रॉपर्टी क्या कहते हैं? नॉन लिविंग. लेकिन जैसे ही वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के टच में आता है, किसी प्लांट्स या एनिमल्स के टच में आता है, तो वो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है. और तो जिसमें भी मल्टीप्लिकेशन या सेल डिवीजन होता है तो वो फैक्टर क्या हो जाता है? लिविंग. सो हम क्या मानते हैं? वायरस कैसा है? नॉन लिविंग भी है और लिविंग भी है. नॉन लिविंग प्रॉपर्टी क्या है? जब तक वो होस्ट के बाहर है तब तक क्रिस्टल के फॉर्म में. लेकिन जैसे कोई मशीनरी का यूज करता है वो प्लांट्स या एनिमल्स का, तो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है. तो मल्टीप्लाई वाला प्रॉपर्टी क्या हो गया? लिविंग हो गया. सो इस तरह से हमारा वायरसेस क्या हुआ? एक नॉन लिविंग एंड लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक हो गया. अब उसका एक टिपिकल स्ट्रक्चर हम देखें. इसका जो जेनेटिक मटीरियल है वो इट में बी डीएनए और आरएनए. ओके, जनरली हम क्या देखते हैं? जेनेटिक मटीरियल डीएनए होता है ना. लेकिन ये जो हमारा वायरसेस है उसका जेनेटिक मटीरियल डीएनए या आरएनए दोनों हो सकते हैं. जनरली वायरसेस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्लांट वायरस एंड एनिमल वायरस. सो प्लांट वायरसेस मोस्टली अफेक्ट द प्लांट्स एंड दे कॉजेस द प्लांट डिजीजेस. एनिमल वायरस जनरली इन्फेक्ट द एनिमल्स एंड दे कॉजेस द एनिमल वायरसेस. ये वायरल डिजीजेस को कॉज करता है. सो जितने भी हमारे एनिमल्स होते हैं, एनिमल वायरसेस होते हैं, एनिमल वायरसेस का जेनेटिक मटीरियल डीएनए होता है, प्लांट वायरसेस का जेनेटिक मटीरियल आरएनए होता है. लेकिन यहाँ भी एक्सेप्शंस हैं. यदि हम लोग कह रहे हैं कि सारे एनिमल वायरसेस का जेनेटिक मटीरियल डीएनए है, वही हम एचआईवी देखते हैं, रिट्रोवायरसेस एक ग्रुप है जिसका जेनेटिक मटीरियल डीएनए ना होकर के आरएनए होता है. उसी तरह से सभी प्लांट वायरसेस का, जो कि प्लांट्स में डिजीज कॉज करते हैं, उसका जेनेटिक मटीरियल आरएनए होता है. लेकिन कुछ यहाँ पर भी हमारे एक्सेप्शनल है. फॉर एग्जाम्पल कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, उसका जो जेनेटिक मटीरियल है आरएनए के प्लेस पर डीएनए होगा. ठीक है. अब टिपिकल स्ट्रक्चर हम लोग देख लें. इनका जो जेनेटिक मटीरियल होता है वो एक प्रोटीन कोट से कवर्ड होता है, प्रोटीन से बने हुए कोट से कवर्ड होता है. ये प्रोटीन कोट कहलाता है कैप्सिड. ओके. फॉर एग्जाम्पल यदि हम टोबैको मोज़ेक वायरस को स्टडी करें, टोबैको मोज़ेक वायरस कॉजेज द मोज़ेक डिजीजेस इन द टोबैको प्लांट्स. तो नाम से क्या लग रहा है? मोज़ेक डिजीज कॉज करने वाला टोबैको में टोबैको मोज़ेक वायरस. उसका यदि आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका जेनेटिक मटीरियल क्या होना चाहिए? आरएनए. लेकिन वो आरएनए के प्लेस पर क्या है? डीएनए है. और इस तरह से उसके ऊपर प्रोटीन कोट का कवरिंग है. सो दिस इज द प्रोटीन कोट और कैप्सिड, है ना. दिस इज प्रोटीन कोट और कैप्सिड एंड दिस इज जेनेटिक मटीरियल. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस. सेकेंड वायरस हम देखें, बैक्टीरियोफेज वायरस. सो बैक्टीरियोफेज वायरस दैट इज a virus which infect the bacteria. नाम से ही क्या लग रहा है? ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, जिसका नाम क्या हो गया? बैक्टीरियोफेज वायरस. सो बैक्टीरियोफेज वायरस का एग्जांपल इस तरह से होता है. एक हेक्सागोनल प्रोटीन कोट है या कैप्सिड है, उस कैप्सिड के अंदर उसका जेनेटिक मटीरियल है और यहाँ पर एक इलॉन्गेटेड कॉलर या शीट है and these are tail fibers. ठीक है. सो बैक्टीरियोफेज वायरस में फर्स्ट पार्ट क्या हो गया? हेड
सेकेंड पार्ट क्या हो गया, कॉलर, एंड थर्ड पार्ट क्या हो गया, टेल। और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, DNA is a genetic material and it is covered by a protein coat which is called as capsid। और ये टेल फाइबर्स हो गए जिसके ऊपर शीट का कवरिंग है। सो वायरसेस जनरली कैसे होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक होते हैं दैट इज डिजीज कॉजिंग होते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट में कौन कौन सा डिजीज अभी हमने देखा, टोबैको मोज़ेक वायरस। उसी तरह से सिट्रस कैंकर एंड कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे वायरसेस डिजीज कॉज करते प्लांट्स में। एनिमल्स में डिजीज कॉज करने वाले कौन कौन से वायरस हो गए, इन्फ्लुएंजा, इट इज अ वेरी कॉमन डिजीज इज फ्लू, जनरली वायरल फीवर हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट हमारा स्मॉल पॉक्स हो गया, जॉइंटिस हो गया, एड्स हो गया, कैंसर हो गया, रेबीज हो गया, ये सारे कौन कौन से डिजीजेज हैं, वायरस, है ना। दिस इज द स्मॉलर देन बैक्टीरिया।